میں اس کی ایڈمیزیبلٹی پہ آپ بات کرنا چاہیں گے جی ہاں اس پہ میں آپ کروں. بات کر لیں، اس کے بعد پھر جو ہے میں منظوری کی. جناب اسپیکر، یقیناً شہید عثمان خان کاکڑ جو 1961 میں اس وقت کے اندباغ آج کے مسلم باغ میں سردار عبدالقیوم خان سرگڑے کے گھر میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی پہلی تعلیم وہاں حاصل کی، پھر کوئٹہ کے تعمیر نو ہائی اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا اور باولپور کے پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے ڈپلومہ حاصل کر کے ایم اے کی ڈگری لی یہاں سے، اور 1979 میں جب بالکل وہ ینگ تھے انہوں نے پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جوائن کر لی. اس کے بعد جب سرحد اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا انضمام ہوتا ہے 1984 میں، تو وہ ان کے کنویننگ باڈی کے ممبر بنتے ہیں، اور 1987 میں پشاور میں ایک تاریخی کنونشن میں وہ پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی فرسٹ سیکریٹری منتخب ہوتے ہیں. جناب اسپیکر، شہید عثمان خان کاکڑ نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی جنرل سیکریٹری، صوبائی صدر اور پھر مرکزی سیکریٹری کے عہدوں تک انہوں نے پارٹی کو عوام میں منظم کرنے اور بالخصوص پھر اس سے پہلے طلباء محاذ پر ملک کے تمام یونیورسٹیز میں انہوں نے طلباء تنظیموں کو منظم کیا. جنرل ضیاء کے فوجی آمریت کے دور میں انہوں نے پاکستان پروگریسو اسٹوڈنٹ الائنس PPSA کا وہ اہم لیڈر رہا. ماشاء اللہ کے خاتمے میں ان کا کردار رہا، اور جب 7 اکتوبر 1983 کو کوئٹہ شہر کے سڑکوں پر اس وقت کے جنرل ڈائر جنرل رحیم الدین نے MRD کے اور پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے مشترکہ جلوس پر گولیاں برسائی، جس میں ہمارے 4 کارکن شہید ہوئے، تو اس مظاہرے میں بھی شہید عثمان خان کاکڑ موجود تھے. جناب اسپیکر، عثمان خان کاکڑ پارٹی کو منظم کرنے میں وہ ایک اعلیٰ مہارت رکھتے تھے. انہوں نے تمام پشتونخوا وطن میں پنجاب، سندھ اور دیگر علاقوں میں انہوں نے پارٹی کو منظم کیا. انہوں نے جو تحریکیں بنی پونم سے لے کر کے پشتون بلوچ سندھی فرنٹ تک، پشتون رہبر کمیٹی، APDM اور موجودہ PDM میں وہ ایک اہم حیثیت رکھتے تھے. جب بھی PDM کا اجلاس ہوتا تھا اس وقت ان کی رائے کو، ان کی تجاویز کو اولویت دی جاتی تھی. جناب اسپیکر، وہ ایک ایسے رہنما کے روپ اختیار کر گئے جب وہ 2015 میں ایوان بالا کے رکن بنے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں پشتونخوا میپ کے ممبر کی حیثیت سے ہوں. نہیں، جب بلوچ پہ ظلم ہوا، جب حیات بلوچ کا واقعہ ہوا تو انہوں نے جس طرح آواز اٹھائی، جب بلوچ مسنگ پرسنز کے حوالے سے تو انہوں نے وہاں جس طرح انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے سائیوال میں جو پنجاب میں جو واقعہ ہوا اس واقعے کو جو دبانے کی حکمرانوں نے کوشش کی، اس مسئلے کو انہوں نے اٹھایا. انہوں نے سندھ کے مظلوم عوام کا بھرپور آواز اٹھایا. انہوں نے فاٹا جو وسطی پشتونخوا کہلاتا ہے، جنہیں زبردستی خیبر پشتونخوا میں وہاں کے عوام کے مرضی کے بغیر شامل کیا گیا. فاٹا میں وسطی پشتونخوا میں جو 70,000 لوگوں کو شہید کیا گیا، ٹارگٹ کلنگ کی گئی، علی وزیر کے خاندان کے 16 افراد کو شہید کیا گیا. جب
फाटा के अरबों खरबों रुपए के मार्केटों को मलियामेट किया गया तो उसने वहां के आवाम की आवाज उठाई। उन्होंने कराची में नकीबुल्लाह मसूद के खिलाफ जो वहां का बदनाम जमाना टारगेट किलर राव अनवर, जिसको एक दिन भी हथकड़ी नहीं लगी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने एक ऐसा रूप, वो एक ऐसे महबूब रहनुमा बन गए जनाब स्पीकर, जिसके हम मिसाल नहीं दे सकते। अपोजिशन लीडर साहब कल गए थे वहां फातिया के लिए, उनकी तकरीर मैंने सुनी। उन्होंने बजा फरमाया कि शहीद उस्मान खान काकड़ 21वीं सदी के उन अजीम शोहदा में उनका शुमार होता है, और उसने बजा फरमाया है। जनाब स्पीकर, 17 जून को और उससे पहले 16 जून को जब हमने 4 रातें असेंबली के बाहर यहाँ हम सब ने गुजारी थी, वो 16 जून को आए इन मेंबरान अपोजिशन के साथ, उन्होंने इजहार यकजहती की, वहां उन्होंने तकरीर की, और उस तकरीर के बाद मेरी खुद भी उनके साथ वो आखिरी मुलाकात थी। और 17 अगस्त को जब वो घर आते हैं 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे के दरमियान रियासती दहशतगर्दों ने जा करके उनको घर में एक ऐसा कारी जर्ब लगाया उनके लेफ्ट साइड पे कि हमने, हमारे दोस्तों वहां जो थे, उन्होंने जब उन्हें बाद में पता चला घर वालों को, घर में सिर्फ 2-3 बच्चियां थी और वहां पे वो अकेला था अपने जो बैठक था। जब हम ये समझे कि शायद दिल का दौरा पड़ा, लेकिन जब उसका सीटी स्कैन किया गया तो पता चला कि इतनी कारी जर्ब लगी है। डॉक्टर के मुताबिक, न्यूरो सर्जन के मुताबिक, कोयटा के न्यूरो सर्जन, आगा खान के न्यूरो सर्जन और अमेरिका के न्यूरो सर्जन के मुताबिक कि जैसा उसको किसी 10 मंजिला छत से सर के बलबूते वो गिरा हो, इस किस्म का उस पे चोट लगा हो। यहां जिस डॉक्टर ने, प्रोफेसर ने उसका ऑपरेशन किया, उसने कहा कि हमें मेडिकल ज़बान में हमें 3-4 विंडो बनाने पड़े, तब जाकर हमने उसके ऑपरेशन हम कामयाब हो गए। लेकिन उसके तमाम खोपड़ी को, उसके सर को खोल दिया गया था, वो वेंटिलेटर पे रहे 2 दिन, फिर हमने उन्हें मुंतकिल किया कराची। और फिर वो दिन सया दिन आया 21 जून का, जब आगा खान हॉस्पिटल के बोर्ड ने कहा कि यहां पर भी उनके दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मेडिकल जबान में 15 दर्जे की जरूरत होती है, वहां उस वक्त सिर्फ 4 दर्जे उनको मिल रही थी। जब 21 जून को उनकी शहादत का ऐलान हुआ तो पूरे मुल्क में, पूरे पख्तूनख्वा वतन में, बैरून मुल्क जितने भी जमहूरी लोग थे, जितने भी आवाम थे, वो सख्ते में तारी हो गए। और फिर आपने वो आसमान भी देखा, फलक ने वो नजारा भी देखा जब कराची से उनकी लाश रवाना हुई, और कराची से कोयटा तक हब पे, फिर विंदर पे, फिर वट पे, फिर खुजदार, सूराफ, उसके बाद मंगूचर, फिर कल्लात और कटकूचा, मस्तुंग, वहां जितनी सियासी पार्टियां थी, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पार्टी पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की जानिब से, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की, उनकी तमाम क़ियादत की, नेशनल पार्टी उनकी तमाम क़ियादत की, जमीयत उलमा इस्लाम उनकी तमाम क़ियादत की, तमाम ताजर तंजीमों की, मजदूरों की, आवाम का जितने भी लोग थे, प्रोफेसर थे, वो लाखों की तादाद में उन्होंने कोयटा से मस्तूंग तक इस्तेकबाल किया, और मनो उन पर फूल की पत्तियां नचावर की गई, हत्ता कि उनके एम्बुलेंस को बूसे दिए गए। और फिर मस्तूंग से लेकर कोयटा तक ये जो 20 किलोमीटर का फासला था, ये हमने 10 घंटे में तय किया। सरियाब रोड
टनल से लेकर के लखपास के हजारगंजी, सोना खान थाना, गाय खान चौक, फिर यूनिवर्सिटी चौक, मूसा कॉलोनी चौक, इमदाद चौक, हाकी चौक और फिर सिविल हॉस्पिटल तक ये हजारों लाखों लोग खड़े थे। और फिर आपने देखा जनाब स्पीकर कि जब 23 जून को सुबह हम रवाना हुए क्वेटा से, आप यकीन करें इतना रश था, हजारों लाखों लोग थे कि हमने कुछ लाख का महज 15 किलोमीटर का फासला हमने 4 घंटे में तय किया। और फिर बमुश्किल हम 5-6 बजे मुस्लिम बाग तक पहुंचे, वहां लाखों का मजमा था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं जनाब स्पीकर, दुनिया की नशरियाती इदारे कह रही है कि इतना बड़ा जनाजा इस मुल्क में अब तक नहीं हुआ है। इससे आप उनकी महबूबियत का, आवाम में उनकी पजीराई का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने अपने आवाम में महबूब थे। जनाब स्पीकर, फिर उनका जो फातिहा ख्वानी हुआ, दुनिया तमाम जिंदगी के शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने, तमाम पार्टियों ने, किसी भी पार्टी ने नहीं, तमाम पार्टियों ने, उनकी लीडरशिप ने उनका फातिहा ख्वानी पे उनने शिरकत की। जनाब स्पीकर, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी अपने इस अजीम रहनुमा को आज के इस हाउस के विसातत से उन्हें खिराज अकीदत पेश करती है। हमने मुतालिबा किया है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन, क्योंकि पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन की तारीख कुछ अच्छी नहीं रही। हमीदुर रहमान कमीशन बना, वो आज तक हमीदुर रहमान कमीशन का रिपोर्ट सामने नहीं लाया गया है। यहां बेनजीर की शहादत का वाकया हुआ, वो दबा दिया गया। यहां पर तूतक का वाकया हुआ, उस कमीशन का कुछ नहीं बना। लेकिन हमने और बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं, लेकिन पार्टी ने मिलकर, हमने वकला से मशवरा करके हमारी पार्टी ने फैसला किया कि अगर हुकूमत पाकिस्तान शहीद उस्मान खान काकड़ के शहादत के इस अलमनाक सानिए की तहकीकात करेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में वो इस अलमनाक शहादत की तहकीकात करे। इसलिए कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 8 अगस्त 2016 उकला के वाकये का यहां पर तहकीकाती कमीशन कायम किया था। वो कमीशन, और फिर उसने फैजाबाद धरने के हवाले से जो कमीशन थी उस पे रिपोर्ट लिखी। तो पार्टी का ये जनाब, हमने, हमारे चेयरमैन ने, महमूद खान अचकज़ई ने लाखों आवाम के सामने कहा कि अगर कोई रियासती इदारा है, अगर हुकूमत है, अगर अदलिया है, अगर वो एक ऐसी तसल्ली बख्श तहकीकाती कमीशन कायम करे तो हम वहां पर सबूत देने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हुकूमत ने यहां हाई कोर्ट का 2 रुकनी एक जुडिशल कमीशन बनाया, जिससे हमारी तसल्ली और तशफ़ी नहीं हो सकती। न सिर्फ हमारी पार्टी का बल्कि उनके करोड़ों मदाहों का, तमाम जमहूरी लोगों का इससे कोई तसल्ली और तशफ़ी नहीं हो सकती। हमारा मुतालिबा है कि जनाब जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट इस वाक़ये की तहकीकात करे। अगर ये नहीं हो सकता तो अक़वाम मुत्तहिदा वो आकर के जनाब शहीद उस्मान खान काकड़ की इस बहीमाना अलमनाक शहादत के वाक़ये की तहकीकात करे। जनाब स्पीकर, यकीनन बाकी मौज़ूआत पे मैं बाद में बोलूंगा। आखिर में मैं ये कहूंगा पश्तो के इस शेर के साथ, चे शहीदा स्ता पविनो में कसम दई, ए शहीदा स्ता पविनो में कसम दई, चिबा अखलम द पेड़ो कसातुना स्ता सुरे सुरे सिनमे हेरा नदा, स्ता सुरे सुरे सिनमे हेरा नदा, चिरायात क्रम स्था दसरो विनु मौजुना डेरा मनना कोरवदान। शुक्रिया नसरुल्लाह खान ज़ेरी साहब।
جی آپ کس موضوع روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔